Please join in. Hello, hello, hello to everyone. Hello to Neetu. I am good. How are you? I hope you all are doing good. So let's start the discussion and let's rock. Chalo, please join in. Hello, hello Neetu. Hello Ankit. Hello Bilal. Anita. Very good. Thanks for joining in. So बस मैं start करने वाला हूँ in a minute or two. Just waiting for all to join in. Yeah. Audio, video, all good. Yeah. So are you ready for one more rocking session? Please join in. I'm waiting for all. Yash. Hello मेरे भाई यश. कैसा है आप देश? Hello to everyone. Yes, Deepak, Ankit, admit card आ गया. I've already posted. It's on the left corner of the page. Okay, there's a link. Download that. Yeah. Chalo. So should I start the session? Are you ready? Because then I have to take the expected session also. Okay, I hope you're all. Hello, Afreen, Jimit, Neetu M. Okay. So I hope you're all watching the evening sessions. Yes or no? Because the evening sessions are very useful, they are very impactful. मतलब almost 52,000 views आ गए हैं किस पे? That means almost 10,000 plus students have already watched the video one of my session. तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना एनएलसी टॉप पे चल रहा है इस टाइम पे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी इन गौतम नगर आर वॉचिंग द वीडियो. क्लियर है? वो कह रहे हैं कि छोड़ो सब कुछ, इसी को बार बार कर लो. सो दे आर रीडिंग दिस पीडीएफ एंड दे आर डूइंग इट. सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन दैट व्हाट यू पीपल गॉट फॉर पास्ट 6 मंथ दे आर वॉचिंग इट नाउ. सो मतलब समझ रहे हो, जो आप लोग करते थे बाकी लोग अब उसे फॉलो कर रहे हैं. सो नाउ यू आर द व्हाट डू से कहते हैं ना, बेंच मार्क बैच. You are the ones who are the leaders who joined NLC first. You did classes with me. They're just doing some questions I'm discussing. You did derma with me, you did psychiatry with me, you did patho with me, physio with me, medicine with me, pharma, PSM. You did all this subject with me. So technically you have more knowledge of these subject given by me compared to them. So I think it is going to boost them. Let's say they get 20-30 question, you people should get 150 plus for sure from the classes and the revision. So that's why all of you, I am very very happy and waiting that you all are going to come. Okay, one more thing, very soon you will get what to see. Yeah, 100% yes, that is possible from your batch. And one more good thing, okay, one more surprise. As you all know, I am always giving surprise. Yes, I have written a motivational song for all of you, and very soon it will premiere by around 8 p.m. or maybe by late. So motivational song for the FMGs who are giving the exam, and it has proper song, means it has the music, it has the lyrics, it has the vocals like proper song. ठीक है, तो बिल्कुल मजा आने वाला है. ठीक है, तो आप सब रेडी रहना. ठीक है, चलो. सो आई डोंट नो हाउ इट विल लुक. मैं थोड़ा एक सैंपल आपको देता हूँ इफ यू वांट द सैंपल. ठीक है, सो लेट्स गिव यू अ स्मॉल सैंपल. आई होप इट विल कम. अगर आवाज आए तो बताना, नहीं आए तो कोई बात नहीं. ठीक है, सो चलो एक मिनट करें. रुक मत तू आगे बढ़, अब हर एक कदम है जरूरी, कहीं मंजिल रह ना जाए अधूरी, करना जब तू हर कोशिश पूरी. मम्मी और पापा करते इंतजार, कब आएगा वो खुशियों का त्योहार, 12 जनवरी को लिखेंगे हम एक नया इतिहास, हम सब होंगे पास, हम सब होंगे पास. सो आई होप यू आर एबल टू लिसन. सुनाई दिया नहीं दिया? आई होप यू आर एबल टू, क्योंकि अभी सैंपल है सिर्फ. ठीक है, so I made it myself. Okay, added music, added lyrics with the help of AI software. तो अभी थोड़ा रॉ वर्जन है, इसको पूरा हो जाए फिर आएगा. ठीक है, सो रुक मत तू आगे बढ़. ठीक है, हर कदम है जरूरी, कहीं मंजिल रह ना जाए अधूरी, मम्मी पापा करते इंतजार, कब आएगा वो खुशियों का त्योहार. ठीक है, लिखेंगे हम एक नया इतिहास, हम सब होंगे पास, हम सब होंगे पास. ठीक है, चलो. सो रैपर्स, so one more extra talent that you people never expected is now coming out. Yes, I can write songs also. I can.
सो वी डॉक्टर्स आर सुप्रीमली टैलेंटेड, ओके। कोई बोलता है डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं भाई। डॉक्टर्स कैन राइट सॉन्ग्स, दे कैन एक्ट, दे कैन मेक कॉमेडी, दे कैन डांस, दे कैन डू एनीथिंग, ओके। चलो, सो वही है। आई थिंक आई एम प्लेइंग सम वीडियो गेम and I get unlocking of one more level, okay। I never knew I can act, only when I started making reel I can act, then I realize I can write songs, then I realize I can make jokes, I can make reels। तो वही है। चलो, सो 19 से भी पढ़ाने का भी जब मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया था, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि पढ़ा भी लूंगा। देन आई स्टार्टेड टीचिंग, इट बिकम अ पार्ट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, ओके। इसको शेयर करना है, ठीक है। ओनली वन रिक्वेस्ट, वन दिस वीडियो इज रेडी विद ऑल द विजुअल्स, ऑल द यू नो फाइनल, please share it to all your friends। Let's make this a dream that we all pass this, okay। So what is the layers of skin? I told you it is what? college girls college girls love to study books, college girls love study books, okay। So what is the layer with the dead cell? It is basically cornea। So corneum contain dead keratinocytes, so it contain the dead keratinocytes, okay। Basal contain the stem cells, it contain the stem cells, okay। Chalo, so very good, answer is C। A patient presents, can you see the structure? It is erythema, then you can see this white color, this is our pus which is filled। Now it is not a abscess, abscess is bigger, it's much small, so it is called as a pustule, pustule is smaller, abscess is bigger। So this white color is due to the WBC which are present inside, okay। Redness is wheal, it is true, it is not a blister, blister is fluid fill, fluid fill, and it is more than 5 mm, more than 5। Eczema is a, yes, it is basically a skin condition which itching is there, plus there is what changes in the skin, like there is an increased keratinization, etc। So it is pustule, most likely some bacterial infection। What is this hard tree bark like condition? So it look like a tree bark, it is very itchy, okay, hyperpigmented, it is lichenification, okay, and it's because of damage to the stratum basal of the skin। So it is a lichenification, okay, lichenification। Treatment is steroids। Treatment is steroids। So disease is lichen planus, lichen planus, ठीक है। तो क्या है ये? पॉलीगोनल पेप्यूल्स आर देयर, ठीक है, इची इज देयर। चलो, वेरी गुड, very good। And it show Koebner's phenomena। What is Koebner's phenomena? What is Koebner's phenomena? Anyone? What is Koebner's phenomena? Also named isomorphic, means wherever you give the, yes, injury, the lesion will expand there, okay। Isomorphic, that is similar lesion occur on giving an injury। Very good, very good, Deepak Kumar Singh, shabash। So that's why it is called as the Koebner's phenomena। What is it called as? Koebner's phenomena, very good। Now comes the question, yes, Anjali, shabash, Afreen, very good। 35-year-old with excessive hair fall, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, दैट इज सम डिजीज इज देयर। तो जब किसी डिजीज के साथ हेयर फॉल हो, उसे क्या बोलते हैं? एलोपेशिया एरिएटा इज बेसिकली ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून है। पैचेस होते हैं इसके अंदर, पैचेस होते हैं, और क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या होगा इसके अंदर? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। फिर एफ्लुएम और दिस, तो रिमेंबर एनाजन मेनली होता है कैंसर कीमोथेरेपी में, ये होता है कैंसर कीमोथेरेपी जिसमें नए सेल ही झड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेड डेड स्टेम सेल्स, ओके। तो ये होगा टिलोजन। जब भी कोई इन्फेक्शन हो, डिजीज हो, डिजीज कराती है टिलोजन, तो याद करना, डिजीज कॉज द टिलोजन टू बी शेडेड एंड कैंसर कीमोथेरेपी कॉज। एंड्रोजेनिक तो पता ही है आपको, मेल में होता है, मेल पैटर्न बैलनेस, तो इसका आंसर होगा आपका बी। ये स्ट्रेस इन्फेक्शन डिजीज हो गया ना, कोई भी स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन हो, वो क्या करता है? स्टेरॉइड्स आर रिलीज, स्टेरॉइड देन कॉज द, यस, डैमेज टू द हेयर फॉलिकल। इसमें देखो ध्यान से, ये अजीब सा ही पैच निकला हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, उसमें डॉट दिखती है, इसमें कोई डॉट नहीं है। एंड वी सी डिक्रीज डेंसिटी ऑफ हेयर, वो भी एक ही साइड पे दिख रही है, वो भी राइट साइड केस पे, समझ रहे हो?
तो ये साइकेट्रिक है ना, इसको है ट्राइकोटिलोमेनिया। शी एक्चुअली प्लक हर ओन हेयर, ओके, and she eat them, so that is why it's a classical trichotillomania, okay. Areata autoimmune है यार, उसमें इतने बड़े एरिया नहीं होते, they are areas like this, so most and clear cut area होता है, there is nothing there, and ये हम ऑलरेडी कैपिटिस में अगेन इट्स व्हाट रिंग वॉर्म, ये सब ठीक है, कैपिटिस नहीं होगा, तो ट्रिकोटिलोमेनिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस गोल्डन क्रस्टिंग सीन? गोल्डन क्रस्ट, it is basically what condition? It is our impetigo. impetigo कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। और क्या कर सकता है रिस्क? यस, इट कैन कॉज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसकी रिस्क क्या है? यस, पोस्ट, ठीक है। एंसेफेलाइटिस सब हो सकता है, पर अगर पूछें ज्यादा कॉमन तो इसमें फिर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एसिस मेनली स्टाफाइलोकोकल है, स्टाफाइलोकोकल, ठीक है। एंसेफेलाइटिस हो सकता है, बट अगेन इट्स अ वेरी रेयर वन। निमोनाइटिस अगेन रेयर वन, दे कैन अकर, बट अगर पूछ रहे हैं ज्यादा तो ये मोस्ट लाइकली पीएसजीएन की बात करेंगे। वेरी गुड, यस। व्हाट इज दिस थिंग? अगेन दिस इज अ फ्यूरंकल, इट इज अ मोस्ट लाइकली अ फ्यूरंकल, that is hair follicle inflammation with pus inflammation. And what is the treatment? Obviously it's not a this, it's a bacterial infection, bacterial infection of hair follicle। और बैक्टीरिया में क्या दोगे? आप दोगे पेनिसिलिन, तो क्या देंगे इसको? यस, दीज आर बेसिकली एंटी फंगल, एंटी फंगल, तो इट्स नॉट अ फंगल। फंगल में याद करना, there is more irritation, more itching, but pus is minimum or not there, so that's why it cannot be a fungal, it's look classical bacterial infection, we should give amoxiclav, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिख रहा है आपको एप्पल रेड? एप्पल रेड कौन करता है? ये एप्पल रेड क्या कहते हैं इसको? वुड्स लैम्प में एप्पल लैम्प कौन है ये? और वो भी एक्जिला में, सॉरी कोरल रेड है, एप्पल का कोरल रेड, सॉरी कोरल रेड। क्या है ये आपका? एरादास्मा, नाम ही इसका है एरादास्मा। एरादास्मा कौन करता है? कोराइनी बैक्टीरियम मिनिटिस्मस, ओके। मिनिटिस्मस, सो कौन करता है? कोराइनी बैक्टीरियम मिनिटिस्मस। आर यू क्लियर? सो आई होप इज क्लियर। सो मिनिटिस्मस, ओके, ठीक है, मिनिटिस्मस, ओके। चलो, इसमें क्या होता है? इसमें आपके मैक्यूल होते हैं, ठीक है, कैसे? ऐसे डार्क भी हो सकते हैं, लाइट भी हो सकते हैं। सो इसमें क्या है? मैक्यूल्स होंगे स्मॉल, विच कुड बी हाइपो और हाइपर पिगमेंटेड, हाइपो और हाइपर पिगमेंटेड। ऐसा लगता है स्मॉल स्मॉल सर्कल बन गए ऑन द ट्रंक, दिस इज कॉल्ड एज पिट्रियासिस वर्सिकलर, ओके। ये कौन करता है? मेलासेजिया फरफर, मेलासेजिया फरफर। टीनिया कैपिटस तो आपको पता ही है, इट इज व्हाट? हेड, तो इट इज द यस हेड पे आपका इन्वॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केबिस इज कॉज्ड बाय व्हाट? स्कारकॉप्टिस कैबाई, ओके, इच माइट, ओके, वो आगे बात करेंगे, उसके अगले क्वेश्चन है। चलो, हाँ, नीचे क्वेश्चन से नहीं करा ज्यादा मैंने। ये पेशेंट है, इसको हुआ ओटाइटिस मीडिया, फिर ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में एक्सेसिव पेलिंग हो गई है, तो क्या है ये आपका? कुछ नहीं है, ये है स्टाफाइलोकोकल स्किन, ये उसके टॉक्सिन से होता है, एंड इट अफेक्ट द स्किन, ओके। तो क्या होगा? उसका एक्सफोलिएशन हो जाता है, तो दैट इज अ केस। ड्रग रैश नहीं है ये, ड्रग रैश इज मच स्मॉलर, मच लिमिटेड। नियोनेटल एली अगेन नॉट, एंड पैम्फिगस नहीं, पैम्फिगस में ब्लिस्टर बनते हैं, ठीक है, ठीक है। लूपस में अगेन इट इज हैविंग रैशेस मोर, ओके। चलो, तो द बेस्ट आंसर इट इज ए। यंग एडल्ट प्रेजेंट विद, हाँ ये है, ये पिट्रियासिस है, ये है पिट्रियासिस वर्सी कलर, अलग अलग कलर का देख रहे हो, वर्सी कलर। कलर का मतलब ही क्या है? अलग अलग कलर, कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, ठीक है। इसमें लाइट है आपका। ट्रीटमेंट क्या दोगे इसका? ट्रीटमेंट बताओ, ट्रीटमेंट ये करता मेलासेजिया फरफर, क्या दोगे भाई ट्रीटमेंट? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अंकित, आफरीन, दीपक, बताओ भाई।
बोलो बोलो, अनीता, अंजलि, बोलो भाई। ट्रीटमेंट बता दो उसका। ट्रीटमेंट, मैलासीजिया फफ, क्या दोगे? ऑब्वियसली यार, क्या दोगे? सब फंगल इन्फेक्शन। पढ़ाया मैंने आपको यार, वो नई चीज नहीं है। यस, वी कैन गिव क्लोट्रीमाजोल। ठीक है। और खास बात क्या है, ये रिकरेंट होता है। अगर रिकरेंट है देन वी कैन गिव ओरल हाइड्रोकोनाजोल आल्सो। ओके, टॉपिकल देंगे। स्टेरॉइड नहीं देना इसमें, ठीक है अंजलि, स्टेरॉइड दोगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, वी गिव कॉट्रीमाजोल, कॉट्रीमाजोल। ओके। और अगर ज्यादा है, रिकरेंट है, तो ओरल दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी गिव ओरल? ओरल वी कैन गिव हाइड्रोकोनाजोल। एक मिनट। आई गॉट द वाटर। यस, और अगर रिकरेंट है तो ओरल। ओरल हाइड्रोकोनाजोल, ये पूछा था एग्जाम में। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ये क्या आपकी वेरी फेमस, यहाँ के वो दिखते हैं बरोज। इच माइट है, इच माइट है, स्केबीज कराती है। ठीक है। और क्या दिखता है, ये पेडिकुलस तो जो है, लाइस है, ये सर में होती है लाइस। ठीक है। ये सार्कोप्टिस कैबाई वार स्केबीज कराती है। उसके बरोज हैं सबसे खास बात। ठीक है, और कहाँ है, इंटरजिटल स्पेस में होता है। ट्रीटमेंट क्या दोगे? परमेथ्रिन। क्या देना है इसका ट्रीटमेंट? परमेथ्रिन। ओके, परमेथ्रिन। ओके। और ओरल देना है तो आइवरमेक्टिन। ये आगे आपका दिख रहा है आपको क्या, ये ब्लैक ब्लैक मदुरा फुट, ये है मदुरा फुट। कौन करता है? एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस। क्या दोगे? एंटीबायोटिक देंगे और एंटी फंगल, माइसिटिमा और मदुरा फुट। ओके, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। नाउ आया हमारा, ये दिख रहे हैं आपको, ये इसके दिख रहे डिजिट में, ये इसके बरोज है, ये इसके होम है, नेस्ट है, और यहाँ पे ये इसके लाइन जो है बरो है। कुछ नहीं है, ये स्केबीज नहीं है। सिफिलिस में क्या होता है? रैश होता है, इसमें स्केबीज है। क्लासिकल स्केबीज। तो 3 क्वेश्चन स्केबीज से आ गए इसमें। चलो आगे चलते हैं। वट इज दिस चाइल्ड विद मल्टीपल अल्सर एंड डिस्चार्ज? दिख रहा है आपका, ये क्लेविकल के एरिया में, ये है सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, जिसकी हो गई केजियस नेक्रोसिस। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इन्फ्लेम है इसके, और क्या कर रहे हैं वो, उसमें केजियस नेक्रोसिस पस आती है। केजियस नेक्रोसिस which causes pus formation, it's cutaneous TB, it's a cutaneous TB। क्या बोलते हैं? स्क्रोफलोडर्मा, स्क्रोफलोडर्मा। ओके, क्यूटेनियस टीबी। तो याद रखना इसमें लीजन। और अगर फेस के अंदर है और क्या इसमें एप्पल जेली है, तो ये आपका लूपस होगा। एंड सेकेंड फॉर्म इज इसका लूपस वल्गैरिस। लूपस वल्गैरिस, इसमें क्या होगा आपका? एप्पल जेली, एप्पल जेली नोड्यूल्स। ट्रीटमेंट एटीटी, ट्रीटमेंट एटीटी। ओके, चलो। A child presents with sore in the mouth and rash in the hand and feet। दिख रहा है आपको ये क्या? ये क्लासिकल हैंड एंड फुट डिजीज, ये है हैंड फुट डिजीज। कौन करता है भाई साहब? हु कॉजेज द क्लासिकल हैंड एंड फुट डिजीज? बता दो भाई। हैंड एंड फुट डिजीज, कॉक्सेकी, कॉक्सेकी करेगा। A16 पॉक्स तो अगेन इट कैन कॉज अवर, यस, स्मॉल पॉक्स वाला हो गया। हर्पीज है तो वो अगेन हर्पीज सिंप्लेक्स है, कैन कॉज जेनेटल और, यस, चलो। पेपिलोमा वार्ड्स कराएगा, और साथ में कराता है ये सर्वाइकल कैंसर।
35 ईयर फीमेल आई है, हर्पेटिक अल्सर। मैंने कहा था हर्पेटिक में हिंट है, हर 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 रा रा रा, हर्पेटिक में हिंट है उसका रा 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 रा। पुष्पा 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 पुष्पा, रेड कलर का पुष्प। थैंक यू अंजलि। तो ये हो गया हर, हर इज रा, रा फॉर रेड। तो इसमें जाएगी रेड किट। इसमें क्या होता है रेड किट में? ए साइक्लोवीर, ए साइक्लोवीर। क्लियर है? तो याद करना ये पेनफुल होते हैं, पेनफुल अल्सर है ये, पेनफुल अल्सर विद वसाइकल्स। मैंने दिखाया भी था आपको कल ये। दैट्स मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये क्वेश्चन आ गए देन योर आशीष सर विल बी लाइक द सोल अथॉरिटी फॉर एफएमजी एग्जाम। अगर ये ज्यादा नहीं कहता, चलो 30 नहीं, 40 नहीं, 20-25 भी क्वेश्चन अगर आ गए हमारे सेशन से, इट विल बी द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन। ओके, चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, वी हैव टॉट इनफ इन द रेगुलर क्लासेस। चलो, 25-year-old मैन गिव अ हिस्ट्री ऑफ पेनफुल पेनाइल अल्सर है, साथ में राइट इंग्वाइनल है, ये है शैंकरॉइड। क्या है ये आपका? शैंकरॉइड। एच डुकरे कराता है, क्या कराता है? एच डुकरे। ठीक है, एच डुकरे। क्या दोगे? डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे इसको, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, नहीं तो अजिथ्रो भी दे सकते हैं, डॉक्सी। ठीक है, ये हो गया डॉक्सीसाइक्लिन। आर यू क्लियर? सो पेनाइल अल्सर है, डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। आर यू क्लियर? शैंकरॉइड है ये। ठीक है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है और ब्लीड करता है। ठीक है, सॉफ्ट है और ब्लीड करता है। सो सॉफ्ट एंड ब्लीड, सॉफ्ट एंड ब्लीड। ठीक है, मैं करा दूंगा, टेंशन ना ले मेरे भाई दीपक। ठीक है, या डुकरे में दर्द होता है, डुकरे में दर्द दुखता है। तो किस में दुख रहा है? डुकरे में, और डॉक्सी दोगे इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दिख रहा है आपको व्हाइट व्हाइट लीजन? सो ये जो है आपका पूरा इसका मैग्जिलरी लीजन में है। तो मैग्जिलरी लीजन में इसका क्या है? हाइपोपिगमेंटेशन है, हाइपोपिगमेंटेशन। तो ऑब्वियसली बात है, पाइबाल्डिज्म होता तो फोरहेड होता। तो ये है आपका सेगमेंटल विटिलिगो। ठीक है, सेगमेंटल विटिलिगो। ठीक है, किससे होता है? ये ऑटो इम्यून है, इट्स ऑटो इम्यून। ठीक है, ऑटो इम्यून है। ठीक है, पाइबाल्डिज्म में फोरहेड होता है, फोरहेड एंड फ्रंट ईयर, फोर लॉक कहते हैं उसको, फोर लॉक। तो अगर आपका ये वाला हिस्सा बनाएगा, ये वाला हिस्सा वाइट, और फोरहेड का जो हेयर है वो उसे कहते हैं। ठीक है, नेवस तो कुछ नहीं, आपका मोल है एक तरह का। मोल जो होता है ना उसे बोलते हैं, जो मोल है अगर उसका कलर हट रहा है उसे बोलते हैं मोल। नेवस इज मोल। अगला ये दिख रहा है आपको एनस, ये एनस है, और ये क्या आपके वाट्स हैं, एनोजेनाइटल वाट्स कहते हैं, एनल वाट्स। कौन करता है ये है आपका कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा। हिमरॉइड जो होते हैं ना वो अंदर की तरफ होते हैं, सो हिमरॉइड्स आर इनर एंड दे आर डायलेटेड वेन्स। क्या है वो? डायलेटेड वेन्स है। तो वेन्स तो लग नहीं रही है, तो लीजन है। तो ये क्या होगा आपका? ये बोवन डिजीज इज अल्सर, इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अल्सर। तो ये है ये। और कौन करता है ये? एचपीवी। कौन सा वाला? कौन सा करता है बता दो? विच एचपीवी? बता दो ना, बताओ ना, बताओ ना, किस कलर का दिखता है? बताओ, 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 बताओ। 6-11, वेरी गुड। और जो सर्वाइकल कैंसर वाला है वो है 16 एंड दिस, सर्वाइकल कैंसर 16-18, ये भूलना नहीं है। 16-18 इज सर्वाइकल कैंसर, 16-18 इज सर्वाइकल कैंसर। ओके, चलो, आई होप इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ये दिख रहा है आपको नेक पे? कुछ नहीं है, कैसल नेकलेस है, कैसल नेकलेस। ठीक है, क्या होता है इसमें? डर्माटाइटिस और भी फीचर्स इसमें हो जाती है। तो क्या है ये आपका? कैसल्स नेकलेस। ठीक है, नाइसिन डेफिशिएंसी है, प्लेग्रा, प्लेग्रा नाइसिन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये दिख रहा है आपको फिश नेट? फिश नेट। ठीक है, क्या है ये? इम्यूनोफ्लोरेसेंस में दिख रहा है ड्यू टू एंटीबॉडी डिपोजिशन। ये पम्फिगस वल्गैरिस मोर लाइकली है। ठीक है, लीनियर में सिंगल लाइन दिखती है आपको ऐसे,
ठीक है, और डर्माटाइटिस इज रिलेटेड टू ये सीलियक डिजीज, ये सीलियक डिजीज के साथ है, फूड की हिस्ट्री होगी इसमें, ठीक है। तो बेस्ट आंसर इज पैम्फिगस वल्गैरिस, ठीक है। और इसमें क्या दिक्कत है, निकोल्स की साइन, निकोल्स की साइन, दैट इज पीलिंग ऑफ द स्किन अकर, क्या होती है, पीलिंग होती है। तो अगर पीलिंग हो रही है, ये निकोल्स की साइन है, ठीक है। हियर, चलो और क्या दिखता है इसके अलावा, ये टूम स्टोन साइन, ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स, चलो ये सीलियक डिजीज के साथ है। वेरी गुड, फ्लैसिड बुल्ला, इसका फ्लैसिड बुल्ला, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, यू आर गोइंग टू डू वंडर, फ्लैसिड बुल्ले, वेरी गुड। सो इसका होगा फ्लैसिड बुल्ले। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये दिख रहा है आपको, हाइपर कैरेटनाइजेशन ऑफ द एक्सटेंसर इन द एल्बो। तो इसमें क्या हो गया, इंक्रीज कैरेटनाइजेशन, तभी हार्ड हो गई है डार्क, हाइपर पिगमेंटेशन, इसे बोलते हैं फ्रेनोडर्मा, क्या बोलते हैं इसको, फाइरिनोडर्मा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीजेस, इट इज कॉल्ड एज फाइरिनोडर्मा, ठीक है। और किससे होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, आर यू क्लियर। सो विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज दिस, ओके क्लियर। सो ये है विटामिन ए, जिंक में होता है एक्रोडर्म, हमने कर लिया था कल, एक्रोडर्माटाइटिस होगा उसमें, ठीक है, एंट्रोपैथी का। ये होता है आपका फायरेनोडर्मा, फायरेनोडर्मा, आर यू क्लियर। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। 25, आ 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसका लीजन है साथ में, ये दिख रहा ब्लैक ब्लैक एक्जिला और बैक में, इसे बोलते हैं हमारा अकंथोसिस, तो डार्क पिगमेंटेशन है, डार्क पिगमेंटेशन, क्या बोलते हैं इसको, अकंथोसिस निग्रिकेंस, निग्रिकांस। और ये क्या होती है, इंक्रीज एसीटीएच। और ये कब कब दिखता है, ओबेसिटी यस, पीसीओडी यस, डायबिटीज यस, कुशिंग यस, हीमोक्रोमेटोसिस में नहीं होता। तो इसका आंसर है 1 2 3, 1 2 3, सी होगा इसका आंसर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ओके। नेक्स्ट, a 45 year old farmer has itchy erythematous papular lesion, ओके। कौन सा एरिया इसका, यस बी, ठीक है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लग रहा है आपका ये, व्हाट इज इट लुकिंग लाइक, ये लग रहा है हमें क्या, एलर्जिक डर्माटाइटिस, ठीक है। तो क्या ये आपका अटोपिक डर्माटाइटिस है, ये अटोपिक एलर्जी, अटोपिक डर्माटाइटिस, क्यों, क्योंकि ये इची है एरिथेमेटस, और कहाँ है, एक्सपोज एरिया में, कौन सा एरिया ये, एक्सपोज एरिया, जहाँ पे इसको वो एलर्जिन कोई भी जो भी है, मतलब पॉलन हो सकता है, कोई मे बी थिंग दैट इज अफेक्टिंग, सही है। तो क्या करोगे, ऑब्वियसली स्किन बायोप्सी करेंगे, और क्या दिख जाएगा, एओसिनोफिल दिख जाएंगे इसमें, एओसिनोफिल्स, ठीक है। बाकी पैच टेस्ट भी कर सकते हैं, बट रिमेंबर बेटर इज एओसिनोफिल, पैच टेस्ट जस्ट गिव यू आइडिया, बेटर वी डू एओसिनोफिल्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है ना, अगर अप्रोप्रिएट पूछा है तो स्किन बायोप्सी करनी चाहिए, ठीक है, स्किन बायोप्सी इज बेटर, ठीक है। अगर पूछा है, अगर पूछे तो स्क्रीनिंग, तो ये स्क्रीनिंग के लिए कर लें, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। सो स्क्रीनिंग विल बी पैच, ठीक है। चल, अगर पूछा है सिर्फ स्क्रीनिंग करनी है, पता करना है, तो वी कैन डू द यस पैच टेस्ट, क्योंकि पैच से पता लगता है एलर्जन कौन सा है, ये प्रिवेंशन में हेल्प करता है, पर प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए वी कैन गो फॉर स्किन बायोप्सी, आर यू क्लियर। चलो, ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट छोटे लिम्ब में, शॉर्ट लिम्ब, और कैसी पेल्विस है, शैंपेन ग्लास जैसी, देख रहे हो, शैंपेन ग्लास पेल्विस, सो शैंपेन पेल्विस, क्या हो सकता है, achondroplasia, achondroplasia, okay, so it's not a, yes, any dislocation of the hip, it's not Perthes disease,
इट इज अवर क्लासिकल अकॉन्ड्रोप्लेसिया. आर यू क्लियर? क्या होता है इसमें? द ट्रंक इज ओके, फेस इज ओके, बट द लिम्स आर शॉर्ट, दैट्स व्हाई दे आर dwarfs. एग्जाम्पल, द गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं हो टाइलर, क्या नाम है उसका, कैनिस्टर, सो दैट इज हैविंग दिस. ओके, चलो अगला दिख रहा है आपको, ये रेड कलर लीजन विद एंड्रॉइड मार्जिन, रेड है, ये कुछ नहीं है, कैंसर है. और कौन सा होगा? मेलानोमा ब्लैक होता है. एडिनो अकर्स इन द इनर ऑर्गन, सो स्किन में है तो बेसल सेल कार्सिनोमा. किसका? ये स्किन का. एंड इट्स वेरी malignant, वेरी डेंजरस. सो स्किन के अंदर है तो ये हो गया आपका यस बेसल सेल कार्सिनोमा. ओके. माइकोसिस ये होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर. इट्स नॉट अ माइकोसिस, इट्स इन ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लेमेशन के साथ दिखता है. ठीक है, वेरी गुड. सो बीसीसी इज द बेस्ट आंसर, बीसीसी. आगे देखते हैं. ये आप हैंड्स का एक्सरे देखो. फर्स्ट यू सी देयर इज अ इंक्रीज गैप, प्लस क्या दिख रहा है आपका? दिस इज कपिंग. ओके, प्लस गैप बढ़ गया फ्लिंग. सो क्या दिख रहा है इसमें? कपिंग, फ्लिंग एंड स्प्लिंग. सो ये किसकी फाइंडिंग है? ये है विटामिन डी. और साथ में क्या है? बोन में कैल्शियम कम है, सो बोन लुक लेस वाइट, इट लुक्स मोर व्हाट डू यू से, faded. So this is our classical rickets, vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency. Are you clear? So vitamin D deficiency. चलो आगे देखते हैं. What is the other concept we will see, discuss or have? आ जाओ. ये देखो आपका. See, we have to do biopsy, Vikas. We have to do biopsy and then we find. Okay, वरना तो कैसे पता चलेगा मेरे भाई? ठीक है, बायोप्सी इज द मस्ट. ओके, पंच बायोप्सी करेंगे इसकी. चलो, इसमें क्या दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? ऐसा कभी देखा? ये है सर्वाइकल रिब. कुछ नहीं है, ये सर्वाइकल रिब है. एक्स्ट्रा रिब आ जाती है फर्स्ट के ऊपर. एंड इट समटाइम कॉजेज व्हाट? इट कॉजेज कंप्रेशन ऑफ द नर्व्स एक्सेट्रा. ये है सर्वाइकल रिब. ठीक है, नॉर्मल नहीं है सर्वाइकल रिब. ठीक है, आगे चलते हैं. बेस्ट व्यू इन द चेस्ट एक्सरे कौन सा होगा? चेस्ट एक्सरे के लिए बेस्ट व्यू ऑब्वियसली बात है इट्स पीए व्यू विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज. ये भी पीए ही है, देख रहे हो, ये भी पीए है. पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू, जो पोस्ट्रो एंटीरियर करते हैं पीछे से आगे, इट शो ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर. तो सारे स्ट्रक्चर दिख जाते हैं, हार्ट, मीडियस्टनम, लंग. दैट्स व्हाई इट इज द प्रेफर्ड. लैटरल कब करते हैं मेनली? लैटरल भी प्रेफर मेनली इन द कंडीशन वी वांट टू सी द, लेट्स से प्लूरल डिफ्यूजन हो गया या कोई आपका लैटरल स्ट्रक्चर हो तब, अदरवाइज पीए. बॉक्स शेप हार्ट सबको पता है किस में आता है? एब्स्टिन अनोमली. और क्या आता है इसके अंदर? मदर में, मदर टेकिंग लिथियम इज द हिस्ट्री. ठीक है, टॉप में आता है आपका फुट, बूट शेप हार्ट, बूट शेप हार्ट. टीए पीवीसी में स्नोमैन. या फिगर ऑफ 8. वीएसडी में अगेन दिस नो सच चेंज. वीएसडी में कोई ऐसा नहीं, पर इसके अंदर क्या हो सकता है आपका? हाइपरट्रॉफी हो सकती है. सो इट कैन कॉज अ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. तो इसका आंसर है एब्स्टिन अनोमली. ये दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है वाइट वाइट हियर एंड अनदर वाइट इज हियर. दिख रहा है ये क्लासिकल स्नोमैन हार्ट. क्या है ये आपका? स्नोमैन. तो टी ए पीवीसी. क्या है ये? टी ए पीवीसी, टी ए पीवीसी. ठीक है. व्हाट इज हाईली आयनाइजिंग? सो ड्यूट्रॉन तो चार्ज ही नहीं है इसमें, अल्फा है. एक्सरे इज आयनाइजिंग बट अल्फा इज मोस्ट because they are actually protons, so they are the most. Okay, gamma is damaging but not ionizing much. Okay, तो आंसर क्या है इसका? अल्फा पार्टिकल. अल्फा आर मोस्ट डेंजरस. ओके, देन पेनिट्रेशन डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज. केवी इज किलोवोल्ट, so ये वोल्टेज है. ठीक है, करंट से जस्ट हेल्पिंग इट पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. पेनिट्रेशन डिपेंड करता है वोल्टेज पे. जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना वो अंदर जा पाएगा. तो उसका आंसर क्या है? केवी. केवी इज किलोवोल्ट्स. ओके, पेनिट्रेशन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 36. ये बताओ, पेरी हाइलर ग्राउंड ग्लास हैजीनेस. तो जीजीओ दिख रहा है इसको, जीजीओ. एआरडीएस यस. पल्मोनरी एडिमा कैन बी यस. नीमोसिस्टिस कैरिनी एटिपिकल निमोनिया यस.
यस यस यस, बट स्टेफाइलोकोकस में आता है आपका व्हाट, इसमें आएगा आपका यस लोबार, लोबार निमोनिया कराएगा। ग्राउंड ग्लास नहीं आता इसमें, इसमें क्या होगा आपका द लोब इज कंसोलिडेटेड, लोब इज कंसोलिडेट, ठीक है, ऐसे पूरा एक लोब जाएगा जो अफेक्ट हो जाएगा। So that's why the entire lobe is gone. That is staphylococcus. So obviously इसमें ग्राउंड ग्लास नहीं दिखती, इसमें क्या दिखता है आपको, लोब कंसोलिडेशन, क्या दिखेगा, लोब, साथ में एयर ब्रोंकोग्राम, एयर ब्रोंकोग्राम, ठीक है बच्चे लोग। चलो आगे चलते हैं, ये आपका सीटी है, ऑर्गन्स पहचानते हैं, आज देखते हैं। ये तो वर्टिब्रा हो गया, बी, के फॉर किडनी, के फॉर किडनी, ये हो गया आपका लिवर, ठीक है, ये आ गया आपका बाइल डक्ट, ये हो गया वीना कावा, ये आपका एस इज व्हाट, एस टी, व्हाट इज एस टी, स्टमक, ओके, ये है स्प्लीन, बीच में ये पैनक्रियास है, ये है पैनक्रियास, पैनक्रियास, ठीक है, हो गया पूरा। सो सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका स्टमक हो गया एस टी, ये हो गया क्या, पैनक्रियास, ये स्प्लीन, ये वीना कावा, आयोटा, ठीक है। चलो तो ये है आपका आंसर, लिवर, पैनक्रियास और स्प्लीन, लिवर पैनक्रियास स्प्लीन, डन है। आगे चलते हैं। अ 30-year-old इसको डिफिकल्टी है स्वेलोइंग बोथ सॉलिड लिक्विड, बैरियम स्वेलोज का दिखाया, आओ देखते हैं, ये दिख रहा है आपको, तो ये बहुत ज्यादा, एक तो क्या है, ये बड़ा हो गया, इसे बोलते हैं मेगा ईसोफेगस, बहुत डायलेटेड है, मेगा ईसोफेगस, साथ में इसकी क्या है, बर्ड बीक है, बहुत ही नैरो है बर्ड बीक, पर ल्यूमेन इसका स्मूथ है, सो इट्स नॉट अ कैंसर, मोस्ट लाइकली इट्स अक्लेजिया कार्डिया, ठीक है। इसमें दिखती है कॉक्सक्रू, कॉक्सक्रू, इसमें दिखेगा आपको रेड टेल, इसमें पाउच दिख जाएगा, सो रेड टेल, पाउच, कॉक्सक्रू एंड अक्लेजिया, इसका ट्रीटमेंट क्या दोगे, ट्रीटमेंट सीसीबी, नाइट्रेट्स, बोटॉक्स, और सर्जरी करेंगे तो हेलर्स मायोटमी, हेलर्स मायोटोमी, तो कौन सी सर्जरी कर देंगे इसमें, हेलर की मायोटोमी करेंगे, क्या करेंगे, हेलर्स मायोटोमी, ओके। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटॉप इज यूज इन पीईटी सीटी स्कैन, या 24 आवर पीएच मैनोमेट्री इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, कौन सा वाला पेट स्कैन के लिए करते हैं, बताओ भाई, 18 है 16 है, 18 फ्लूरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है, तो क्या करते हैं, फ्लूरो डी ऑक्सी ग्लूकोज यूज करते हैं, आर यू क्लियर, 18 वाला यूज करते हैं, और ये क्या होगा, एक्टिव टिश्यू पिकअप करेगा, कौन पिकअप करेगा, एक्टिव टिश्यू पिकअप, एक्टिव टिश्यू या फिर जो आपके मेटास्टैसिस है वो पिकअप करते हैं, दैट्स वाई एक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं और मेटास्टैसिस भी चेक कर सकते हैं, किसमें, पेट स्कैन में, ठीक है, पेट स्कैन क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ओके। अगला क्वेश्चन, पेशेंट आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, देख रहे हो वेंट्रिकल एक तरफ कंप्रेस हो गई है, पूरा ब्रेन पुश हो गया एक तरफ, और ये आपका क्रिसेंट शेप है, क्या ये आपका क्रिसेंट, सी शेप, देख रहे हो, सिक्कल या सी शेप, क्या होगा ये, obviously it is what, it is our classical SDH, EDH में तो इडली होता है ना, इसमें इडली होगा, सब एरेक्नोइड के अंदर क्या होता है आपका, ऐसे ब्रांचिंग सा होता है, इसमें होगा ब्लड इन वेंट्रिकल्स, ऐसा पैटर्न, और सब ड्यूरल है, ठीक है। इंट्रासेल में इरेगुलर ब्लीड होता है, वही ब्रेन के अंदर होता है, सो यू सी द ब्लड इन द ब्रेन एरिया। अगला क्वेश्चन, या और क्या डैमेज है इसमें, कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स, इसमें आपका बैरी एन्युरिज्म, इसमें जाएगा आपका इडली, इसमें जाएगा एमएम, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इसमें जाएगा कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स, कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं,
ऑन्कोलॉजिस्ट जो बोन स्कैन करना चाहता है, बोन स्कैन के लिए क्या यूज करते हैं बता दो भाई, व्हाट इज यूज फॉर बोन स्कैन, बताओ एनीवन? टेक्नीशियम, TC99, so it is technetium 99 is used for that purpose. तो क्या यूज करना है? टेक्नीशियम 99, वेरी गुड, शाबाश। फॉस्फेट नहीं करते बच्चा, टेक्नीशियम करें, ठीक है। इज द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर, बताओ भाई, आओ देखते हैं। ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। बोन स्कैन, वेरी गुड। उसके बाद में फिर आपका सीटी आएगा, फिर सीटी, बोन स्कैन देन सीटी, लीस्ट और जीरो इज एमआरआई, एमआरआई इज नो रेडिएशन, नो रेडिएशन। चलो आगे देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, सो हियर वी कैन सी ब्लड इन द वेंट्रिकल्स और सिवियर सडन हेडेक है, थंडर क्लैप। और साथ में क्या है इसका, ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ब्लड इन वेंट्रिकल्स। इट इज क्लासिकल व्हाट, इट इज सब एरेक्नॉइड हेमरेज। क्या है ये आपका? सब एरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक है। क्या दोगे ट्रीटमेंट? निमोडोपिन, 140/90 mmHg बीपी टारगेट। और साथ में क्या करोगे, सर्जरी अगर करनी है तो क्लिपिंग कॉइलिंग ऑफ एन्यूरिज्म, क्लिपिंग कॉइलिंग ऑफ एन्यूरिज्म, ठीक है। चलो, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ। अगला ये डायग्राम देखो, क्या दिख रहा है इसमें, बताओ, फिर आगे देखेंगे। हिंट देता हूं कि ये कुछ काला काला है यहाँ पे, क्या ये ब्लैक ब्लैक? इट इज एयर अंडर डायफ्राम। क्लासिकल रप्चर ऑफ एनी hollow viscera which release the gas, pneumoperitoneum, आंसर इज pneumoperitoneum, गैस या एयर अंडर द डायफ्राम, वेरी गुड। दिख रहा है व्हाइट, व्हाइट इज डायफ्राम, ब्लैक इज द गैस, ओके। सो pneumoperitoneum, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। Which is the following respond best? So remember, seminoma is made up of what? It is made up of germ cell, और जर्म सेल क्या है, माइटोटिकली एक्टिव होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव, माइटोटिकली एक्टिव, एक्टिव माइटोसिस कर रहे हैं, तभी उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। टेराटोमा इज लेस, सो दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी सेमिनोमा, ठीक है। आगे चलते हैं। पेशेंट है, उसको क्या है, लेथार्जी हेडेक है, साथ में उसका मर गया, ठीक है। ये सिस्ट दिख रही है आपको, कुछ नहीं है, ब्लैक कलर की क्या है, दीज आर मल्टीपल सिस्ट्स, और अंदर ऑर्गेनिज्म भी है, वाइट वाइट, कैन यू सी दिस ऑर्गेनिज्म? सो दिस इज द ऑर्गेनिज्म, जो मैं रेड में बना रहा हूँ, ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है वाइट वाइट। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। कौन करता है ये इंडिया में मोस्ट कॉमनली? टिनिया सोलियम, दैट इज पिग। और अगर टिनिया सेजिनाटा है तो फॉरेन कंट्री में दे ईट बीफ मोर देन द दिस, सो दैट्स वाई वहां पे बीफ होगा, तो ये बीफ हो गया, बीफ काउ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अ यंग पेशेंट है, उसको नेजल पॉलिप है, साथ में राइनोसाइनोसाइटिस है, सही है। और बताता हूँ इसके अंदर, ध्यान से देखो फोटो, क्या है ये, क्या है ये, कुछ समझ में आया? ये हार्ट है, ठीक है अंकित, वो मैं करा दूंगा, टेंशन ना ले मेरे भाई, ठीक है। उसका मैंने अलग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा हुआ है। कौन ज्यादा है, न्यूरॉन्स आर लीस्ट, बोन एंड न्यूरॉन सबसे रिफ्रैक्टरी, याद रखना, यूट्रस, बोन और ये रिफ्रैक्टरी है, ठीक है। बोन मैरो इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव, और फिर साथ में टेस्टिस के जम्स, मैं दिखा दूंगा टेंशन। ये आपका कुछ नहीं है, कार्टर जेनर सिंड्रोम है, ऑर्गन्स का है इसके उल्टी तरफ है, ये है कार्टर जेनर सिंड्रोम। क्या है इसके अंदर, साइटस इनवर्सस,
situs inversus organs on opposite side. एग्जाम्पल डेक्स्ट्रोकार्डिया, इसका हार्ट कहाँ है, देखो राइट साइड में इसका हार्ट, सो डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, आर यू क्लियर। और उसके अंदर डिफेक्ट किसके अंदर है, यस सीलरी मोटिलिटी, सो एक्सोनीमल डायनेमिक, सीलरी डिस्काइनेसिस, आर यू क्लियर। सो सीलरी डिस्काइनेसिस है डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। देख रहे हो हार्ट उल्टा है इसका, साथ में इसको क्या होगा, ब्रोंकेक्टेसिस भी होगा। दिस इज कार्टर जेनर सिंड्रोम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट है डिस्फेगिया सॉलिड के लिए, सॉलिड है मतलब नैरो ल्यूमेन है, रास्ता उसका नैरो है, तभी लिक्विड्स पास होते हैं पर सॉलिड पास नहीं होते, नैरो ल्यूमेन। और ये आपका दिख रहा है इररेगुलर, ठीक है। सो इररेगुलर मार्जिन है, सो द मास इज हैविंग इररेगुलर मार्जिन, सो इज रैट टेल अपीयरेंस। क्या होगा ये, कैंसर, ईसोफेगल कैंसर, ओके, ईसोफेगल कैंसर, ठीक है। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी अक्लेजिया के अंदर। अगला ये दिख रहा है आपको, अनीमिया, क्या दिख रहा है आपको ये, फर्स्ट यू कैन सी द colon इज वेरी स्मूथ, सो देयर इज लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशंस, लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशंस इन colon, क्या लग रही है, लेड पाइप जैसी, लेड पाइप, क्या होगा लेड पाइप, ऑब्वियसली अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है मेगा colon एंड लेड पाइप, ओके, लेड पाइप, ठीक है, वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयर ब्रोंकोग्राम कब दिखता है आपका, कंसोलिडेशन में, याद कर लो उसका वर्ड है कंसोलिडेशन। तो जब भी होगा कंसोलिडेशन वो पूरा वाइट होगा, उसमें आपको एयरवे दिख जाते हैं, कंसोलिडेशन में वाइट होगा, उसमें क्या दिख जाएंगे आपको, द एयरवेज आर विजिबल, एयरवेज इनसाइड, ठीक है, कंसोलिडेशन एंड एयरवेज कॉम्बो क्या बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कब कब दिखेगा बोलो, कब कब, ऑब्वियसली एटलैक्टस में कोलैप्स होगा तो कंसोलिडेशन हो सकता है, ये दिख सकता है, निमोनिया यस, अडीमा यस, बट प्लूरल इफ्यूजन में चांस इसके कम है। इसमें क्या दिखता है, मेनली ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल, नॉट दिस, क्योंकि इसमें प्लूरा भर गया ना, लंग्स का अफेक्शन नहीं है, प्लूरा में पानी भर गया तो दैट विल कॉज द लंग टू बी ऑब्सक्योर, सो दैट्स व्हाई इसके अंदर सवाल ही नहीं उठता है, कब दिखता है, जब फ्लूइड इज इन द लंग एंड द एयरवे आर विजिबल, in this case it is CP blunting and the entire area is gone, so pleural effusion में एयर ब्रोंकोग्राम नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरा का डिफेक्ट है, ये सारे लंग पैरेनकाइमा डिफेक्ट है। So only when lung parenchyma is disease you can see the airway showing their branching pattern, that is the case, so best answer होगा आपका pleural effusion। So how much score you people have got, कितना स्कोर आ गया बता दो, कितना स्कोर है बच्चा लोग, कितना आया बताओ बताओ। हेलो सुल्तान भाई कैसा है, 40, क्या बात है बिलाल, वरा छा गए भाई, मेरा मन खुश हो गया, वेरी गुड, 32 वेरी गुड अंजलि, शाबाश बच्चा। और बताओ, और बताओ, और बताओ। 41 क्या बात है, 38 क्या बात है, मतलब छा रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल तबाही मचा रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, चलो, so I'll end the session, I have to prepare for other things, okay, so let's meet 8 p.m, don't forget be there, कोई बात नहीं, होता है अंजलि, लाइफ है। 16-18 पे तो दिक्कतें होती हैं। सो डोंट एवर मेक अ मिस्टेक एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड, आर यू क्लियर। चलो, सो लेट्स एंड द सेशन, लेट्स मीट